Hey students, hi everybody, welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session wherein we are gonna deal with one of the very important aspects, that is the book that saved the earth. This is going to be the chapter and I'm gonna explain the entire chapter to all of you. So you guys please make sure that you are staying tuned, you all are listening to me very carefully and you're paying attention to every bit that we are gonna do herein. Alrighty, so guys, please pay proper attention to everything, and it's gonna be like an important chapter. Please give me a confirmation in the comment section that I am rightly visible and audible to everyone. Please give me a confirmation. Everybody, quickly do that. Hi Sanjeev, hello Pushkar, hi Prem, hi Rajput, hello everybody. Welcome to the session. A very good afternoon, everyone. Okay. So, guys, I'm sure that you guys know about me. I'm Preksha Sharma, your English educator, and I've done masters in English from Delhi University. I've been guiding a lot of students for the past few years to be really good in the communication skills and to score good marks in the academics. And so, guys, I'm gonna help you all right, with the perfect kind of अंडरस्टैंडिंग वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस कि हम लोगों को हमेशा मतलब बेसिकली क्या करना होता है लाइक दिस हैज ऑलवेज बीन this has always been there has always been a difference between what we are doing in our academic books, and there's always been a difference between what we are doing in our you can say in our like academic books, as well as what we are doing in our practical English. So these are the things that you need to be careful about. ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हो, आप लोग इंग्लिश को अच्छे से समझ रहे हो. हाय कार्तिक, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. हे उत्कर्ष, गुड आफ्टरनून. So everyone, let's make a move ahead. The book that saved the earth, पूरा chapter का explanation है इसमें. ठीक है, so everybody tell me like what's your understanding. आपको क्या पता है इस chapter में क्या दे रखा है, इस book में क्या दे रखा है. I mean basically book नहीं, I mean obviously एक book की हम इस particular chapter में बात करेंगे, लेकिन इस पूरे explanation में क्या चीज़ mention है. Tell me in the comment section. Quickly tell me everybody. What has been mentioned here? What does it talk about in a broader context? क्या यहाँ पे हम लोग देखते हैं, किस चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं? Okay, this is about a small nursery book. Okay, Unnati, hi Krishna, a very good afternoon. Hi Pooja, hey Madhav, hi dear. All right, Prashant, about book. Okay, that is like a very nice thing. Prashant, absolutely correct. All right, the book that saved the earth. So this is going to be the full explanation of this chapter demonstrates about a book that saved the earth from Martian invasion. All right, okay, you're doing this for the very first time, Bhumi. Okay, hi Candy Girl. Okay. ऑलराइट बेटा, तो इस बुक में आपको ना बेसिकली क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ पे एक बुक की बात करेंगे जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है वो बच जाता है इन्वेड होने से. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर. ओके, इट्स गोना बी द फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन. हाय कैंडी गर्ल. तो अब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. मैं आप लोगों को बिट बाय बिट सब कुछ बताने वाली हूँ. आपकी ये पर्सनल ड्यूटी है दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द राइट मैनर. ठीक है. द बुक दैट सेव द अर्थ, इसमें क्या है, मदर गूस इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश. तो मदर गूस क्या है, ये एक वेल नोन बुक है. ठीक है, नर्सरी राइम्स में ना आप ये बुक देखोगे. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, वैसे तो ज़्यादा सभी ने पढ़ा होता है. ठीक है, आई हैव ऑल्सो सीन दिस वेरी बुक, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग. जो ये बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन नर्सरी की राइम बुक है, और किस में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है. डू यू थिंक दैट सच अ बुक, क्या आपको लगता है कि ऐसी एक बुक प्लैनेट अर्थ को सेव कर सकती है एक मार्शन इन्वेजन से? मार्शन इन्वेजन का क्या मतलब होता है कि दूसरे प्लैनेट के लोग जो हैं वो वहाँ के लोग आके हमारे प्लैनेट पे अटैक करने वाले थे. तो क्या आपको लगता है कि ये सेव कर सकता है? तो इस प्ले को पढ़ो विच इज सेट फॉर सेंचुरीज इन द फ्यूचर, मतलब 4 सेंचुरीज आगे इस प्ले को सेट किया गया है. एंड फाइंड आउट. ऑल राइट, सो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे पास हैं? हिस्टोरियन हमारे पास है, ल्यूटेनेंट आयोटा. ठीक है, दैट इज लाइक द नेम. ग्रेट एंड माइटी, सॉरी, हिस्टोरियन है एक, फिर हमारे पास एक ल्यूटेनेंट आयोटा है, हमारे पास ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है. बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं. आप लोग इसका नाम पता है कैसे लिखते हो एग्जाम में? थिंक टैंक.
This is how you write it, and this is not the right way. It, what is it? Instead, it is thing and it is tank. Okay, keep it in your mind. Then what do we see that do you like, do you think such a book can save planet? All right. So यहाँ पे great और mighty think tank है, apprentice noodle है, captain omega है, और sergeant oop है, और off stage voice भी आपको दिख रही है. तो हमारा पहला सीन चल रहा है वहां पे, रीड एंड फाइंड आउट व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. 20th सेंचुरी को, ठीक है, हम एरा ऑफ द बुक क्यों बोलते हैं? हमें जब भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जब भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके बुक के स्टार्टिंग में, तो हमेशा उनको रीड किया करो, जिससे कि हमको एक आइडिया मिल जाता है कि अभी हमें क्या पता चलेगा, हमें ना कुछ ऐसा पता चलेगा कि 20th सेंचुरी को हम एरा ऑफ द बुक बोलते हैं. ठीक है. और आपको हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, तो किसने कोशिश की थी इन्वेड करने को अर्थ को 21st सेंचुरी में? ठीक है. अब हमारा टाइम यहाँ पे बताया गया है विच इज वॉट 25th सेंचुरी. ठीक है, आपको बताया गया टाइम क्या है, 25th सेंचुरी है, यानी हमारी सेंचुरी 21st सेंचुरी है, उससे 4 सेंचुरीज आगे का ये प्ले है. सो दिस इज समथिंग विच इज सेट इन द फ्यूचर. ऑल राइट. प्लेस क्या है, जगह कौन सी है? द म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लानट अर्थ. नाउ यहाँ पे बिफोर राइज क्या था, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन. सो जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन पे ना एकदम शाइन कर रही है. वो इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, जो डाउन राइट पे टेबल पे बैठा है, ऑन विच देयर इज अ मूवी प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर यानी कि लाइट उस पर हाईलाइट कर रही है. अ साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, मतलब एक बोर्ड लगा रखा है, उस पे साइन है, क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री. क्या है उस पे साइन कि ये एशियन हिस्ट्री का म्यूजियम है. डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, डिपार्टमेंट किसका है, 20th सेंचुरी का. शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, तो वो खड़ी होती है और बो करती है ऑडियंस को. ठीक है. नाउ अब हमारा हिस्टोरियन है, वो क्या बोलता है? ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून. ठीक है, गुड आफ्टरनून विश किया जाता है. वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री, आइए हमारे म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री में. प्लीज रिमेंबर दैट. हाँ जी, हाँ जी, यस कैंडी गर्ल. बेटा आपको ना देखो, प्लेस जब भी हम डील कर रहे होते हैं प्लेस के साथ, ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको बहुत ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो. यू आर पेइंग अटेंशन टू एवरी बिट ऑफ इट, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो गुड आफ्टरनून. हमारे इस म्यूजियम में, एशियंट हिस्ट्री के म्यूजियम में आए हैं, आइए हमारे डिपार्टमेंट में आइए. क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. क्यूरियोसिटीज का क्या मतलब होता है? क्यूरियोसिटी एज इन की जिज्ञासा. ठीक है, जो हमारे पुराने ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी की जो जिज्ञासा वाली, जिज्ञासा से भरी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, वो इसमें बता रखी हैं. ठीक है. सो द 20th सेंचुरी, जो 20वीं सेंचुरी थी, वो क्या बोली जाती थी? उसको बोला जाता था एरा ऑफ द बुक, यानी कि उस जमाने में, यानी अभी जो हमारा जमाना चल रहा है, उस जमाने में किताबें बहुत ज्यादा यूज हुआ करती थी. इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग. उन दिनों में बुक्स हर चीज के बारे में हुआ करती थी. ठीक है. फ्रॉम एंट ईटर्स टू ज़ूलूस. ठीक है, जो एंट ईटर्स होते थे या ज़ूलूस होते थे, उनसे रिलेटेड. बुक्स टॉट पीपल, तो जो बुक्स हैं उन्होंने लोगों को पढ़ाया. हाउ टू, कैसे, व्हेन टू, कब, एंड वेयर टू, कहाँ, एंड वाई टू, क्यों. ओके, क्यों वाली चीज भी. ठीक है, कि मतलब कैसे, क्या, कब और कहाँ चीजें होती हैं. दे इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? उन्होंने दिखाया. दे इलस्ट्रेटेड, दिखाया लोगों को. एजुकेटेड, उनको पढ़ाया. पंक्चुएटेड, उनको सिखाए. ठीक है, पंक्चुएशंस. और मतलब दे बेसिकली एज इन लाइक कि जो बुक्स थी ना, उसमें क्या क्या होता था? बुक्स में होता था इलस्ट्रेशंस, तभी मतलब कि वो शो कर रहे हैं इमेजेस. ऑल राइट. एजुकेटेड मतलब उसमें इंफॉर्मेशन इतनी होती थी कि वो एजुकेट कर रहे होते थे. ऑल राइट. पंक्चुएटेड मतलब कि उसमें पंक्चुएशंस यूज होते थे. ऑल राइट. और उसमें डेकोरेटेड होते थे. डेकोरेटेड एज इन कि उसमें डेकोरेशंस होते थे. ऑल राइट. मतलब कि सजाया जाता था किताबों को. दैट इज हाउ द बुक्स वर. It is the answer of that question which is given at the very beginning of the chapter. Yeah, yes, you're very right. Yep, Madhav, you're right. So, but the strangest, the लगाया है, क्यों superlative degree यहाँ पे use हुई है?
सुपरलेटिव डिग्री किसकी यूज हुई है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, सो व्हाट डज इट से? इट सेज बट द स्ट्रेंजर्स, यानी कि बहुत अजीब थिंग अ बुक एवर डेड, मतलब एक बहुत ही अजीब चीज जो बुक ने कभी पहले कभी किया है, वॉज टू सेव द अर्थ, यानी कि वो क्या था कि अर्थ को बचाना। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शन इन्वेजन ऑफ 2040, वो कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी, मतलब जो 2040 में जो हमारे सोल्जर्स ने इन्वेड किया था उस लैंड को, कि क्या आपने कभी उसके बारे में नहीं सुना है? Sick. Okay, so it's like, okay, सुनो, it's like that. Okay, what do they teach children nowadays? मतलब अब तो आजकल वो लोग बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? Well, you know, the invasion never really happened. लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो invasion था 2040 का, वो कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, ऐसा हमारा ड्रामेटिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, द इन्वेजन, मतलब इन्वेजन इज बेसिकली व्हेन द रूलर्स फ्रॉम द अदर लैंड दे कम टू रूल ऑन योर लैंड। So the invaders, ठीक है, never really happened because a single book stopped it, क्योंकि एक अकेली किताब ने उसको रोक दिया था। What was the book you ask? अच्छा, वो कौन सी बुक थी बताओ? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, एक मतलब बहुत अच्छी एनसाइक्लोपीडिया जिसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, या अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, मतलब कि जिसमें टोम अबाउट रॉकेट्स, मतलब कि एक किताब जो भरी हुई हो मिसाइल्स और रॉकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, या फिर एक सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई आउटर स्पेस से कोई एक सीक्रेट फाइल थी। ऑलराइट, उस बुक ने रोका था। ठीक है, नो इट वॉज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं थी। All right, so you need to remember what are the choices he talked about. He talked about the book containing the information about the rockets and missiles, a noble encyclopedia, and a secret from the outer space. That is what he mentioned. All right. समझ में आया? सो द स्ट्रेंजर, बट द स्ट्रेंजेस्ट, स्ट्रेंजेस्ट का क्या मतलब होता है? कि बहुत ही अजीब। स्ट्रेंजेस्ट का मतलब होता है लाइक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग जो थी, वो थी कि वो उनका जो इन्वेजन था वो कैसे बचा। अब हम ये देखते हैं, कह रहे नन ऑफ दीज, इट वॉज नन ऑफ दीज। अब मैंने आपको ये बात बता रखी है, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता रही हूँ कि जो नन ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही एक प्लूरल, ठीक है, एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन से आता है। ठीक है, सो नाउ नो इट वॉज नन ऑफ दीज, इट वॉज बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो। तो अब जो मतलब हमारा नरेटर है वो बहुत ही ड्रामेटिक मैनर में, प्रशांत बेटा क्या मैं वापस से समझाऊं? बताओ, व्हाट डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? What do you want me to explain again? Quickly tell me. What is it that you want me to explain again? Immediately. Yes, just tell me, Prashant. ओके, सो नाउ दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। बेटा आपको ब्रीफ क्यों चाहिए किसी पैसेज और पैराग्राफ का, जब मैं आपको पूरा उसकी डिटेल बता रही हूँ? तो यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं इट वॉज, अब वो बताने लगता है तो यहाँ पे आता है डैश, तो वो कहता है लेकिन यहाँ पे सुनो, हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टीरियोस्कोप। सो हिस्टीरियोस्कोप क्या है? हिस्टीरियोस्कोप एक मतलब इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली an instrument which is being used to show, all right, to show what, like to show the entire thing like containing the history, जिससे कि आपको पूरा एक glance दिखे, all right, and show you what happened many centuries ago in 2040. तो अब जो हमारा जो भी हमें narrate कर रहा है, she is a girl, she turns on projector, तो वो projector को start करती है बताने के लिए, और फिर लेफ्ट की तरफ पॉइंट करती है, स्पॉटलाइट हिस्टोरियन पे जाती है, सॉरी स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरी, ऑन हिस्टोरियन, जो हिस्टोरियन है, ठीक है, जो स्पॉटलाइट थी उस पर वो चली जाती है, और वो डाउन लेफ्ट पे आती है थिंक टैंक पे। ठीक है, थैंक मंथ लगाना, ऑल राइट, थिंक टैंक पे, वो इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, तो एक बॉक्स है, ठीक है, और रेज्ड बॉक्स है मतलब एक लेवल उसका ऊपर बना रखा है, वो उस पे बैठा है। ठीक है, एंड वी सी ही हैज अ ह्यूज, तो उसके पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ह्यूज
एग शेप्ड हेड है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि उसका जो हेड है वो कैसा है, बहुत बड़ा, एग शेप्ड। ओके, दिस इज लाइक सर्कल, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, just a moment. So like this is something like this, okay, like oval head. ऑल राइट, उसका इस तरीके का हेड है। और यू नीड टू रिमेंबर, मैंने पहले भी बोल रखा है, फिर से बता रही हूँ, जब भी हम लोग किसी ऐसी चीज की बात कर रहे होते हैं ना जहाँ पे मैं कैरेक्टर मेंशन कर रही हूँ, सो यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, ही wears a long robe decorated with stars and circles. Okay, that is what you need to keep in your mind. ऑल राइट, सो उसका एक बहुत ही बड़ा एग शेप का हेड है और वो एक बहुत ही बड़ा रोब पहनता है, यानी कि कोट पहनता है, जो डेकोरेट होता है, किसके साथ डेकोरेटेड है वो, स्टार्स के साथ डेकोरेटेड है और सर्कल्स के साथ डेकोरेटेड है। एप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, जो एप्रेंटिस नूडल है यानी कि जो उसका साथी है, जो उसकी हेल्प करता है, बेसिकली द सेक्रेटरी, यू कैन सी अप्रेंटिस इज द सेक्रेटरी। तो नूडल वो उसके पीछे खड़ा है, एक इलैबोरेट, इलैबोरेट का क्या मतलब होता है, लाइक यू कैन से ब्रॉड, ठीक है, एक ब्रॉड स्विच बोर्ड पे, अ साइन ऑन एन ईजल, सो वहां पे एक बोर्ड लगा रखा है, उस पे वो साइन क्या रीड करता है, ये साइन है, ठीक है, विच इज वॉट, मास स्पेस कंट्रोल। सो कहाँ पे हैं वो, हमटी डमटी, यप, दैट इज वॉट द थिंग इज, नो, that is going to be the amazing thing in the entire chapter, like the entire drama which is going to change the course of everything. So it says mass space control, great and mighty think tank, commander in chief, bow low before entering, ठीक है। सो इसमें क्या है, नूडल, ठीक है, व्हाट डज ही से, नूडल बोइंग, अब वो क्या कर रहा है, वो बो कर रहा है, यानी कि अपना सर झुका रहा है उसके आगे। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। आपने देखा कि उसको एड्रेस कैसे किया गया, देयर इज अ वे टू एड्रेस हिम, कि उसका नाम किस तरीके से लिया गया है, उसके नाम लेने के तरीके में ही ये दिखाया गया है कि वो मतलब कितना कि वो किस टाइप का क्रीचर था, उसको रिस्पेक्ट दी गई है, उसको बोला गया है कि बहुत ज्यादा ग्रेट, बहुत अच्छा, माइटी मतलब बहुत ही ज्यादा दयालु, ओके, थिंक टैंक दयालु, बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही ज्यादा दयालु, थिंक टैंक जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर, क्रीचर like is basically the being, creature is being referred as a being in the whole universe, पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में। what are your orders, आपके orders क्या है, instead of just addressing him sir, what are your orders, a particular line has been like used, a particular sentence has been used, okay, for this. Now think tank peevishly, think tank peevishly, what do you mean by the term peevish, can anyone tell me in the comment section, जल्दी से बताइए, what do you mean by the term peevish, quickly tell me everybody. वर्ड मीनिंग्स हमें पक्का से पता होने चाहिए। देखो, पीविशली बेसिकली मीन्स अ लिटिल इरिटेटेड, ठीक है, लर्न इरिटेबली, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, पीविशली का मतलब होता है इरिटेबली। सो यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। सो वो कह रहा है कि तुमने मेरे को सैल्यूटेशन तो यूज ही नहीं किया, सैल्यूटेशन क्या होता है, सर और मैडम, राइट, वो सैल्यूटेशन बोलते हैं ना, या अनॉयड ईरा या भूमि, दैट इज राइट। तो व्हाट डज ही से, ही सेज कि तुमने मेरे लिए सैल्यूटेशन तो यूज ही नहीं किया, अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, तो फिर से ये पूरी चीज क्या कहते हैं, सॉरी या, सो फिर से पूरी चीज बोलो। ऑल राइट, नूडल क्या बोलता है, इट शैल बी डन, नूडल कहते हैं ठीक है सर, ये हो जाएगा। O great and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creatures in the whole universe. अब वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है, मतलब एक सांस में बोलता है, उसकी सांस चढ़ जाती है। What are your orders? यहाँ पे जो ये ऐसे डैश दे रखे हैं ना, कभी भी प्ले में ऐसे देखा जाता है तो वो इसका मतलब है कि वहां पे बहुत स्ट्रेस दे के बोला जा रहा है, लाइक व्हाट आर योर ऑर्डर्स, इट्स नॉट लाइक दिस व्हाट आर योर ऑर्डर्स, इंस्टेड इट्स लाइक व्हाट are your orders, like this, okay. So you see that he was so very much concerned about using the right kind of salutation for himself, like usko dear sir की जगह कैसे address किया जा रहा है, ruler of Mars and her two moons, तो proper,
All right, yes. So he needed a proper kind of appreciation for himself. He looked for appreciation. He looked for the right kind of address to him. Okay, do you get that? Is that clear? Yes. Now we have think tank, everybody. That's better, Noodle. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? So what do we see here? वो कह रहा है कि now you see कि इसका boasting का nature कितना ज़्यादा है. उसने कहा that's better. ठीक है, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, भाई बहन लड़ रहे होते हो एंड यू आर लाइक कि मुझे रिस्पेक्ट दे, ठीक है, मुझे तू तू करके मत बोल, ऐसे बोल भैया आप और दीदी आप, लाइक दैट. सो यू आर लाइक या दैट्स बेटर. Okay, so now that is what the thing with him is. He wanted that respect for himself and he said, "Yep, that's better." ठीक है. सो नूडल क्या कहता है, आई विश टू बी प्लेस इन कम्युनिकेशन, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं कम्युनिकेशन में रहूँ हमारे मैन्ड स्पेस प्रोब के साथ. मैन्ड स्पेस प्रोब का मतलब ये होता है लाइक अ पर्सन हु इज गोइंग टू लाइक कॉज द इन्वेजन, द पर्सन हु इज गोइंग टू लीड इट. ठीक है. तो वो कैसे हमारे अर्थ को एड्रेस करता है, वो एड्रेस करता है रिडिक्यूलस लिटिल प्लैनेट. ठीक है, एक बकवास सा छोटा सा प्लैनेट लाइक दैट. क्या बोलते हैं वो उससे. Now Noodle is like, Earth your intelligence. So Noodle is showing what kind of appreciation he demanded, like think tank demanded. He was sure like उसको क्या exactly चाहिए था. On the basis of that he was providing the kind of understanding. समझ में आ रही है बात. नाउ थिंक टैंक, अब हम थिंक टैंक को देखते हैं. अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज. तुम्हें पता है कितनी बकवास, मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इस जगह की. लेकिन पहले समथिंग इंपॉर्टेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ. माई मिरर, मेरा मिरर का है, मेरा शीशा का है. आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मुझे ना कंसल्ट करना है अपने मिरर से. ठीक है. So you see that he was a kind of a man who was really funny in himself. Okay, he was talking about something like he was addressing to earth as something ridiculous, and he was very sure about the fact that he should be given the respect. Okay, that is what he needed. All right, hi Chirag. So now Noodle कहता है it shall be done sir. So he hands think tank a mirror. So वो क्या करता है, वो think tank को एक mirror देता है. Think tank, mirror, mirror in my hand, who is the most fantastically intellectually gifted being in the land. All right. So off stage voice, एक पीछे से आवाज आती है एक छोटे से pause के बाद, you sir. All right. So what does he want? He wants the praise for himself. वो यही चाहता है कि मुझे praise किया जाए. कहता है mirror, mirror in my hand, who is the most. Now you see the kinds of words that he always addressed to himself. You know, like there's that line मैं अपनी ही favorite हूँ in one of the movies. Okay. So उसमें it's like अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, like that you're praising yourself on your own. So he is the most fantastically intellectually gifted being. These are the three adjectives that he's using for own himself, and he wants to get the appreciation heard, and he hears that. Now think tank, smacking mirror, quicker, answer quicker next time. ठीक है. स्मैकिंग मिरर मतलब कि उसको ऐसे साइड पे, मतलब थोड़ा सा ऐसे. स्मैकिंग इज लाइक थप्पड़ सा मारना. ठीक है. अब उसे ऐसे थोड़ा सा डांटता है एंड देन कहता है क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार जल्दी आंसर देना, पॉज नहीं लेना है. आई हिट अ स्लो मिरर, जो स्लो बोलता है मुझे वो पसंद नहीं है. सो वो अपने आप को एडमायर करता है मिरर में, मतलब वो अपने आप को देख के बड़ा खुश होता है कि मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ. ओके, डू यू ऑल गेट दैट. समझ में आ रहा है. इट्स अ लिटिल फनी काइंड ऑफ अ थिंग. आर यू ऑल गेटिंग दैट? आर यू ऑल एंजॉयिंग इट? एवरीवन क्विकली keep on learning these things along with me. Okay, try to learn it like fantastically intellectually gifted person, or यहाँ से ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe. So like what other things that he just says. Okay, now we see next thing is he says now, oh, there I am. Okay, oh my god, I look so amazing. That is what he means. ठीक है. लाइक वो अपने शीशे को जब देखता है ना तो वो खुद की तारीफ करता है. There I am. Oh my god, I look so beautiful, like that. Then are we Martians not a handsome race? वो कह रहे क्या जो हम लोग हैं Martians, उनका मतलब the category of the people living, of course the people living on Mars, they are being referred to as Martians. Okay. So हम जो Martians हैं, क्या हम लोग handsome race नहीं है, मतलब जो हमारी जाति है, क्या हम लोग handsome लोग नहीं है. ठीक है.
So, what happens is so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. तो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं उन अगली अर्थलिंग से अर्थलिंग्स पीपल लिविंग ऑन अर्थ तो उन अर्थ की क्रीचर से जिनके छोटे छोटे हेड होते हैं ठीक है बिकॉज मार्शियंस दे हैड लाइक बिगर हेड्स दैट इज व्हाट वी सॉ हे दिव्या हाय डियर समझ में आ रही है बात एवरीवन so now what happens is then those ugly earthlings with their tiny ants noodle. You keep on exercising your mind and someday you'll have a balloon brain just like me. तो वो क्या बोलता है अब वो नूडल को बोलता है कि तुम ना अपने दिमाग को ना एक्सरसाइज में लगाते रहा करो ठीक है और किसी दिन फिर तुम्हारे पास भी एक बलून की तरह दिमाग हो जाएगा जैसे कि मेरा दिमाग है Okay, what do you understand about think tanks so far, everyone? Try to give me an answer in the comment section. What have you understood about think tanks so far in the comment section? Quickly tell me, everybody. जल्दी बताओ. What do we really understand about him? He wants to be praised. Yes, he loves himself very much. Absolutely correct. He needs admiration, right? He thinks as if he is the god of the universe, right? And he thinks that no one is better than him in all the universe. Absolutely correct. So you guys got that so well. ठीक है उसके बाद क्या होता है नूडल ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक आई होप सो so Noodle is very well aware of the fact that his master like always needs the appreciation. So that is why he's using the most appropriate terms that needs to be like justified. Think tank now contact the space probe. चलो अब जल्दी से जो वहाँ पे space में जाके मतलब attack करने वाले हैं उनको contact करो. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. तो कह रहे हैं कि मुझे वहां पे अटैक करना है प्रिमिटिव बॉल ऑफ मर्ड की तरह हमको नाम एड्रेस किया गया है तो यू हैव टू जस्ट कीप दिस इन योर माइंड एवरीबडी कि जितने भी फ्रेजेस यूज किए जा रहे हैं ना अर्थ के लिए आप वो अच्छे से ध्यान रखो इट्स इंपॉर्टेंट ठीक है सो नाउ अर्थ बिफोर लंच ठीक है ओके सो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर हो जाएगा ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन सो वो लीवर्स मतलब कि वो जो आपके स्विचेस होते हैं उसको एडजस्ट कर रहा है वो बोर्ड्स पे ठीक है इलेक्ट्रॉनिक बज हो रही है और बीपिंग सुनाई दे रही है जैसे ही कर्टन राइज होते हैं सीन 2 ठीक है अब सीन जो है हमारा सेकंड सीन है पहला सीन हमारा खत्म हो गया आपके जितने भी ड्रामास होते हैं ऑल राइट दे आर ऑलवेज रिटर्न इन सीन्स कीप इट इन योर माइंड ठीक है now read and find out what guesses are made by think tank about the books found on earth ठीक है सो क्या गेस करता है थिंक टैंक जो बुक्स हमारी अर्थ पे मिलेंगी एंड दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट सीन दैट वी विल हैव because when I read it I was literally laughing because they were doing all the funny things with the books it seems as if like everyone is like so very much distressed with whatever was being done there okay Shirdat hi dear देखो अब टाइम क्या है कुछ सेकंड्स बाद प्लेस क्या है मास स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विल अ पब्लिक लाइब्रेरी लर्न करना ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कहाँ पे चीजें हो रही थी जस्ट अ मिनट पीपल हाँ ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे चीजें हो रही थी मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विल अ पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे चीजें अब हो रही थी दैट इज व्हाट वी आर नाउ गोना गो अहेड विथ तो चलिए अब हम देखते हैं
ऑल राइट। तो एट राइज यानी कि जब वो राइज हो रहा था, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। जो ओमेगा है वो कैप्टन है, वो बीच में खड़ा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स, तो ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है कार्ड कैटलॉग को, ड्रॉवर्स को देख रहा है कंफ्यूज तरीके से, समझ में नहीं आ रहा है। लिeutenant आयोटा लेफ्ट में है, वो ना बुक्स जो है, बुक केस में जो बुक्स रखी हुई हैं उनको काउंट कर रहा है। सर्जेंट ओओपी जो है वो राइट में है। ऑल राइट, सर्जेंट इज अ पोजीशन, ओके, इट्स अ टाइटल गिवन टू अ पर्सन इन आर्मी, ओके। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, ओपन क्लोज कर रहे हैं बुक को। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे देख रहे हैं कि है क्या चीज ये। ऑल राइट, शेकिंग इट, उसे हिला रहे हैं बुक्स को। एंड देन रिफलिंग द पेजेस, और फिर ना क्या कहते हैं, पेजेस को पलट रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई बुक हो और आप उसको चेक कर रहे हो, ठीक है, एंड अपना दिमाग हिला रहे हैं, ठीक है। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, जो नूडल है वो नॉब्स को एडजस्ट कर रहा है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू। सर, नूडल कह रहा है कि सर मेरे को ना बिल्कुल क्लोज व्यू आ रहा है, साइटिंग इज व्यू आ रहा है स्पेस के क्रू का, यानी कि जो लोग वहां गए हुए हैं उनका, ठीक है। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स, तो वो बहुत बड़े गॉगल्स, इनॉर्मस इज लाइक ह्यूज, बहुत बड़े चश्मे लगाता है। एंड टर्न टुवर्ड्स द स्टेज, और स्टेज की तरफ जाता है देखने के लिए क्रू को। दे सीम टू हैव, all right, is applied. Yep. Yep. So they seem to have entered some sort of earth structure. तो मतलब अब वो क्या क्या कहता है, मतलब नूडल कहता है ऐसा लगता है कि वो ना कुछ अर्थ के किसी स्ट्रक्चर में ना घुस तो चुके हैं, ठीक है। सो थिंक टैंक, एक्सीलेंट, कमाल की बात है। मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, अब आवाज से क्या कहते हैं, कनेक्शन बनाओ। ऑल राइट, दिस इज वॉट यू सी। येस शिवम, दिस इज वेरी मच इन सिलेबस। ये सिचुएशन दिख रही है आपको, ये एक्चुअल आई मीन ये वाला सिचुएशन जो डिस्क्राइब किया जा रहा था कि कौन क्या कर रहा है, काउंट कौन कर रहा है, बुक्स कितनी है शेल्फ में, सब कुछ। नाउ नूडल, ठीक है, एक माइक्रोफोन में बोलता है, मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1। सो वो कह रहे हैं मास स्पेस कंट्रोल, मैं बुला रहा हूँ क्रू प्रॉब 1 का, मतलब सच अ वे टू एड्रेस मास स्पेस कंट्रोल। तो वो उससे कनेक्शन, लाइक हम कहते हैं ना, हेलो हेलो चेक इन चेक, सॉरी, hello 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 check check, like that. So that is what they were doing. Come in Captain Omega and give us your location. So वो address करते हैं Captain Omega से बात करने के लिए और कहते हैं कि आप हमें हमारी अपनी location दीजिए। Omega speaking into a disc which is on a chain around her neck. ठीक है, सो एक चेन है उसके नेक के अराउंड, ऑल राइट, और वो बेसिकली एक डिस्क काइंड ऑफ चीज है, ओके, गोल, जैसे हमारी सीडीज होती हैं। ऑल राइट, इरा वी कंसिडर देम एज एन एलियन, बिकॉज हम लोग 4 सेंचुरीज आगे की बात कर रहे हैं, 2025। ऑल राइट, सो अब हम आगे, बहुत आगे की बात कर रहे हैं हम। Okay, so that is where like we see that it's total a fantasy kind of a thing. There is nothing real in it. Okay, it's just a drama for all of you to just to read it. So of course we are talking of a time which is ahead of what we are into right now. So, Noodle, come in, Captain Omega. Give us your location, Omega. Speaking into a disc which is on a chain around her neck. Captain Omega to Mars Space Control. Lieutenant Iota, Sergeant OP, and I have arrived on Earth without incident. तो अब कैप्टन ओमेगा अपने आप को एड्रेस कर रहा है कि कैप्टन ओमेगा इज गिविंग इन्फॉर्मेशन टू मास स्पेस कंट्रोल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो ल्यूटेनेंट आयोटा है और जो सर्जेंट ओपी है और मैं खुद, हम लोग आ गए हैं अर्थ पे बिना किसी परेशानी के, विदाउट इंसिडेंट मतलब बिना किसी परेशानी के। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस स्क्वायर प्लेस। तो वो कहते हैं कि हमने ना यहाँ पे ना क्या कहते हैं, हम यहाँ पे आके रुक गए हैं, हम इस जगह पे आके रुक गए हैं। ये एक रूम है, वो इंडिकेट करता है रूम, जो एक स्क्वायर सी जगह है। ऑलराइट, दे वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो लोग एक्चुअली है कहाँ। ओके, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, मतलब आपको क्या आइडिया है ल्यूटेनेंट आयोटा कि हम लोग कहाँ हैं। आयोटा, आई कैन फिगर इट आउट, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैप्टन। होल्डिंग अप अ बुक, बुक को पकड़ के, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ these peculiar items, peculiar I mean these specific items. So that they were, the books were being referred to them, referred by them as peculiar items. कह रहे मुझे ना कोई आइडिया नहीं है, मैंने लेकिन काउंट कर लिया, ये 2000 हैं ऐसी चीजें। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, कह रहे हैं कि ये वाली जो जगह है ना, ये जरूर कोई टाइप की ना स्टोरेज होगी। ऑल राइट, दैट इज सॉरी।
तो ये says कि ये वाली जो जगह है ना, ये जरूर कोई टाइप की ना स्टोरेज होगी, किन्हीं पर्टिकुलर चीज होगी, स्टोरेज बार्न, मतलब वेयर यू लाइक स्टोर द अनवांटेड थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ओपी? आपको क्या लगता है सर्जेंट ओपी? ओपी, आई हैवंट अ क्लू, मुझे तो बिल्कुल कोई क्लू नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज होकर आया हूँ, बट मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। मे बी दे आर हैट्स, हो सकता है कि शायद वो हैट्स हो, ठीक है, टोपी। तो वो एक बुक को ओपन करता है, अपने हेड पर रखता है ठीक है। से मे बी दिस इज haberdashery, haberdashery just like in their language is like something that is kept on the head as a hat. Okay, yeah प्रशांत, it is all right. So ओमेगा अब क्या कर रहा है, बो करके, मतलब उनके आगे झुकता है ऐसे। Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. So अब सब लोग किस पे जाते हैं? Everybody goes and is like कि जो हमारे mighty, दयालु और इतने बढ़िया, इतने इतने powerful, इतने strength वाले जो हमारे think tank है, all right, वो हमें इसका particular matter बता सकते हैं. Do you get that? समझ में आया? Got it? All right. Any doubts so far? कुछ पूछना है? ऐसा कुछ जो क्लियर नहीं है? एनीबडी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? क्लियर? वेरी गुड, ओके, दैट्स लाइक एन अमेजिंग थिंग इफ दैट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स गेट गोइंग। अब आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है ना कि वो लोग क्या खेल खेल रहे थे यहाँ पे? दे वर डूइंग दीज लाइक फनी थिंग्स। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। थिंक टैंक बोलते हैं अब हमारे एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, मतलब दिस इज एन एडजेक्टिव। ओमेगा मतलब क्योंकि वो एक छोटे लेवल पे था, एक एलिमेंट्री लेवल पे था, तो उसको इस तरीके से एड्रेस किया जाता है। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप, इनमें से एक चीज को ऊपर उठाओ, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, जिससे कि मैं उसे पास से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा अपने हैंड के पाम पे बुक को होल्ड करती है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे अब समझ में आ रहा है। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि जो अर्थ के क्रीचर्स होते हैं वो हमेशा खा ही रहे होते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, तो जिस जगह तुम लोग अभी हो, इज अनडाउटेडली, बिना किसी डाउट के, अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। क्रूड इज लाइक रॉ, राइट? रिफ्रेशमेंट इज की खाने का मटेरियल, स्टैंड कि ये जो स्टैंड है ना, इसमें ये खाने की मटेरियल्स रखे हुए हैं। ओके, सो ओमेगा टू आयोटा एंड ओपी, सो ओमेगा बोलता है आयोटा और ओपी को, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, वो हमें बोल रहे हैं कि हमें खाने पीने की जगह पे हैं। ओ ओपी सेज ओके वेल, अच्छा, द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, जो अर्थ के अर्थलिंग्स आर द क्रीचर्स लिविंग इन अर्थ, उनकी बहुत ही अजीब डाइट थी। ओके, थिंक टाइम, दैट आइटम इन योर हैंड, वो वाली चीज जो तुम्हारे हाथ में है उसे हम सैंडविच बोलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट suggestion, or the very first thing declared by think tank about the book was that it was a sandwich. Keep that in your mind. Haberdashery is being used as a name of the hat, like something that needs to be kept on the head to cover the head. Okay, in their language it is. Okay, consulting is discuss, to discuss. Okay, Ansh, got that? सो दैट आइटम, वो वाली चीज जो आपके हाथ में है ना, वो एक सैंडविच है। ओमेगा नॉट कर रहा है अ सैंडविच, आयोटस नॉट करके अ सैंडविच, ठीक है। ओ ओ पी टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, वो उसके हाथ से बुक लेती है, ठीक है। एंड अ सैंडविच, फिर क्वेश्चन मार्क कि ये सैंडविच है। Think tank. Sandwiches are the main staple of Earth diet. Staple food is the very basic food, right? Like the staple food. All right. So what do they say? Now think tank कहता है कि जो sandwiches होते हैं ना, वो उनका बहुत ही ज्यादा basic खाना होता है अर्थ वालों का. Look at it closely. उस पे ना बहुत closely, बहुत पास से देखो. ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, ओके, ओमेगा जो है वो ना अच्छे से ऐसे खोल के किताब को देखता है, जैसे कि क्या चीज है। There are two slices of what is called bread. वो कह रहा है कि दो slices होती हैं जिसे हम bread बोलते हैं, ठीक है। And between them is some sort of filling. और उसके बीच में ना कुछ filling होती है, कुछ चीजें भरी हुई होती हैं। Omega, that is correct, sir. हाँ बिल्कुल ठीक है। Think tank. To confirm my opinion, मैंने जो आप लोगों को opinion दिया उसको confirm करने के लिए मैं आपको order देता हूँ कि आप उसे खाओ। तो ये पहला order किसको मिला? ओमेगा को मिला। ओमेगा गल्पिंग ऐसे
जब आप डर जाते हो तो आपको डर से जो आप गल्प डाउन करते हो, ईट इट, थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंग दैट, तुम क्या शंका, मतलब क्या तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम क्या मतलब कि डाउट कर रहे हो माइटी थिंक टैंक पर, ठीक है। Omega, oh no, no, but poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. तो ओमेगा अब क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है टू आयोटा। वो क्या बोलता है आयोटा को कि जो पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा है ना, लाइक उसने ना खाना नहीं खाया था अपना ब्रेकफास्ट, तो लेफ्टिनेंट आयोटा मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, पे खाओ। आयोटा डब्बियसली, ठीक है, डब्बियसली इज लाइक बहुत ही ऐसे चौकन्ना, चौका बिल्कुल चौकन्ने के साथ, ठीक है, डूबियसली एकदम ऐसे, ईट इट, खाऊं, ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर है कि मैं एक सैंडविच खाऊं। आई एम श्योर, मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ इसको लेके, लेकिन बट हाउ कैन बी सो इम्पोलाइट, मैं कैसे इतनी ज़्यादा इम्पोलाइट हो सकती हूँ, ठीक है, कि मैं इसे खाऊं मेरे सर्जन से पहले। तो वो अपनी बुक दे देती है बहुत ही अच्छे तरीके से सर्जेंट ओपी को, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम ये क्या कहते हैं सैंडविच खाओ इमीडिएटली। ओपी मेकिंग अ फेस, ऐसे चेहरा बना के, हु ल्यूटेनेंट, कौन ल्यूटेनेंट, मैं ल्यूटेनेंट, ओके वो कह रहे मैं खाऊं, आयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग for the glory of Mars OOP. Okay, so they were just trying to like like in a way motivate him, instigate him कि तू कर. Okay. Now what happens next is OP. Yes, of course. Unhappily, बिना किसी खुशी के, immediately वो ना अपने मुंह को बड़ा खोलता है वाइड। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, बिना सांस लिए वो उसे एकदम शॉक के साथ देख रहे होते हैं। He bites down on the corner of the book. Remember that this detail is like very important. Shivdat, I'm coming up with the chapter footprints without feet right at 7 p.m. today itself. Attend the class, okay? You can ask me the questions there. ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाट डज ही से, ही सेज हेयर लाइक, वो अपना मुंह बहुत बड़ा खोलता है, ठीक है, और वो उसे ब्रेथलेसली देखता है। वो ना एक कॉर्नर जो बुक का है ना उसे चबाता है, ठीक है, एंड पेंटोमाइंस मतलब धीरे 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 च्यू कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है उसे निगलने की, ठीक है, स्वेलोइंग वाइल मेकिंग टेरिबल, बहुत अजीब अजीब से फेसेस बना के, जैसे आपको अगर मैं अचानक से करेले का जूस पिला दूं तो आपका मुंह कैसा बनता है ना, वैसे उसके साथ सिचुएशन हो रही थी, अलग अलग फेसेस बन रहे थे। ओमेगा वेल ओपी, आयोटा वेल ओपी, ओपी कफ्स, उसको बहुत कफिंग होती है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, पाउंड हिम मतलब थपथपी देना, उसके पीठ को सहला रहे थे वो। थिंक टैंक, वाज इट नॉट डिलीशियस, क्या ये टेस्टी नहीं था सर्जेंट ओपी, ओपी सल्यूट करके, दैट इज करेक्ट सर, बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, मुझे समझ में नहीं आता कि ये अर्थलिंग्स जो अर्थ के क्रीचर्स हैं, ये उस चीज को अपने गले से नीचे कैसे जाने देते हैं बिना वाटर के, ये कितना ज्यादा ड्राई है और ये मार्शियन डस्ट है, ठीक है, मतलब कि सॉरी ये इतना ड्राई है जैसे कि हमारे मार्स पे जो डस्ट होती है उतना ड्राई। तो रिमेंबर दैट सिमिली इज हेयर। ऑल राइट, इज दैट क्लियर? यस यस शिवदत्त, ओके, yeah, yes, what explanations are going to be there at 7 p.m. Okay. Now what happens is, then the next thing that happens is, yep, yeah, here we are. Noodle, sir, great and mighty think tank. I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. तो अब नूडल का जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नूडल क्या बोलता है कि माइटी ग्रेट थिंग, मैं आई एम सॉरी कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक एक बहुत ही छोटी सी इनसिग्निफिकेंट ना के बराबर एक छोटा सा ना मेरे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन फ्लोट हुई है, आई है इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक, आई कैन बी वर्थ इट, कैन बी वर्थ मच, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम बोलो, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। ट्रिफलिंग इज लाइक ये छोटा सा अपना इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हमें बताओ। नूडल, वेल सर, अच्छा सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, यानी कि मैंने ना उनकी ना फिल्म्स देखी थी, मतलब प्रोजेक्टर में ही इनकी सैंडविचेस की। मैंने नोटिस किया था कि अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, ठीक है, तो वो ना उसको ना मतलब खाते नहीं थे, लेकिन वो ना कुछ टाइप का उनका कम्युनिकेशन होता था, ठीक है, तो वो एक तरीके से सही बोल रहा है, बुक्स दे आर अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स, नो, यू गेट टू नो थिंग्स, यानी वो ना उसका कुछ तरीके का कम्युनिकेशन का डिवाइस होता था। थिंक टैंक, हॉटिली, ठीक है, हॉटिली मतलब थोड़ा मतलब इन अ वे, मतलब एक्सेप्टिंग थिंग इन अ वेरी नॉट नेचुरल मैनर। वही मेरा अगला पॉइंट था,
These are actually communication sandwiches. ये ना actually communication sandwiches है. Think tank is never wrong. मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता हूँ. Who is never wrong? अब उसको सुनना है. सब लोग बोलते हैं great and mighty think tank is never wrong. So he is a kind of man like who always looks for the praises for himself. Think tank. Therefore I order you to listen to them. इसलिए मैं आपको order करता हूँ कि तुम मेरी सारी बातों को सुनो. Omega, listen to them. Like listen किसको सुनो? Iota and OP to each other puzzled. अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं confused. Listen to them. Iota and OP think time. Do you have marbles in your ears? क्या तुम्हारे क्या कहते हैं कानों में पत्थर पड़ गए हैं? Alright, I said listen to them. उनको सुनो. Martians bow very low. ठीक है वो salute करते हैं. I mean अपना ऑनर दिखाते हैं. ओमेगा इट शैल बी डन सर. ठीक है हो जाएगा सर. दे ईच टेक 2 books फ्रॉम द केस. 2 books लेते हैं और अपने कानों पे ऐसे लगा लेते हैं. ऑल राइट और उसको इंटेंटली सुनने की कोशिश करते हैं कि कुछ सुनाई दे. इंटेंटली का क्या मतलब हुआ? बहुत ही ज्यादा केयरफुली. ऑल राइट इज दैट मेकिंग सेंस एवरीबडी? Hi Akashak, I think you have joined late. Otherwise, whosoever is like listening to me since the beginning is understanding the things well. ठीक है. अंश बेटा metaphor होता है when like the comparison has been made by using sorry without using like or as. If I'm telling you that he is a fox, so I am basically saying that he's a cunning person because fox is known for its cunningness. Similarly, if I'm saying it to him like this, that means that he's a cunning person. Okay. Is that clear everybody? You got that well? समझ में आई ये बात? Yes? Clear? All right. So now what we are gonna go ahead with is, and here we go. Then we have personification. So personification is like when you're attributing the human-like qualities to something non-human. Okay, for example, like we did your poem, no, the trees where and what did it say? The sun bury its feet. So, like the feet is a word which is being associated with the human. So, like there in the poet has attributed the human-like qualities to something totally unhuman. Okay, sorry, not human. So that is what it is. Okay, I hope you understood that. Clear है आपको अब? Right. So now, what do we say? Do you have marbles in your ears? I said, listen to them. Martians bow very low. Okay. So now they are listening. They are trying to listen. कुछ तो मिल जाए. Iota, do you hear anything? वो ना Omega को बोल रहे तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? Then OP. All right. Sorry. Omega whispering book. Nothing. Back. Sorry. Back. कुछ नहीं. Do you hear anything? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? OP. बहुत तेजी से बोल के कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. फिर ओमेगा एंड आयोटा ओके दे लिसन इंटेंटली अगेन. फिर वो फिर से सुनते हैं. टिंग टिंग वेल वेल रिपोर्ट टू मी. मुझे बताओ व्हाट डू यू हियर? आपको क्या सुनाई दे रहा है? ओमेगा नथिंग सर कुछ नहीं. पर एज वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी. हो सकता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है. हाय गुड इवनिंग मंदारा. आई एम वेरी वेल. All right, that was being said by Noodle. Think Tank was modifying them in his own ways. Yes, that's the right thing. Now, iota. Nothing, sir. Perhaps the earthlings have sharper ears than we do. तो वो कह रहा है कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा है सर. कि हो सकता है कि जो अर्थ पे क्रीचर्स रहते थे उनके जो ears थे ना वो हमसे ज्यादा sharp थे. All right. Then we see omega and iota. Shh, they listen intently. Okay, we did that. Okay. Yep. From here. OP. I don't hear a thing. Maybe these sandwiches don't make sounds. OP कहती है कि मतलब हो सकता है मतलब मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि हो सकता है ये sandwiches ज़्यादा sound नहीं करते हैं. Then think tank. What does somebody suggest the mighty think tank has made a mistake? क्या क्या कोई ये suggest कर रहा है कि mighty think tank ने गलती करी है? Omega, oh no sir, we'll keep listening. हम सुनते रहेंगे. Noodle, please excuse me, your brilliance, but a cloudy piece of information is twirling around in my head. So Noodle is actually the right kind of a person in the entire drama. Okay. अब वो कह रहा है please excuse me your brilliance. The way he addresses that is very important. कि कृपया मतलब please मुझे excuse कीजिए. एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक इंफॉर्मेशन एक क्लाउडी पीस ना इंफॉर्मेशन मेरे मेरे दिमाग में ट्वर्ल कर रहा है घूम रहा है मेरे हेड में. तो थिंक टैंक कहता है वेल ट्वर्ल इट आउट. अच्छा तो ठीक है उसे फिर बाहर निकालो. और राइट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू. वो कहता है कि जो बाकी सबको बोलता है कि नूडल और मैं मिल के ये क्लैरिफाई करेंगे तुमको. Noodle. I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches. मुझे ना ये basically
ऑल राइट, रिकॉल, आई मीन बेसिकली क्या बोल रहा है, थिंक टैंक इज सेइंग, सॉरी, नूडल इज सेइंग कि मुझे ना ऐसा याद आ रहा है कि जो अर्दलिंग्स हैं दे डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, वो लोग सुनते नहीं थे सैंडविचेस को, दे ओपन देम, वो उनको खोलते थे और उनको देखते थे, ठीक है, दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू डू, सो इन अ वे ही वाज ऑलवेज सेइंग द राइट थिंग्स। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, मैं ओमेगा आपके लिए ये क्लैरिफाई करता हूँ, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, वो ना ईयर के कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, वो आई के कम्युनिकेशन के लिए है। ऑल राइट, नाउ कैप्टन ओमेगा आप टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच, वो वहां पे जो कलरफुल सैंडविच रखा है ना उसे लो, इट अपेयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। और जब मतलब आप मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। ओमेगा एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ले लेता है मदर गूस का, ठीक है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, ऐसे होल्ड करता है जिससे कि सामने वालों को टाइटल दिखाई दे। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा अपने लेफ्ट शोल्डर पे देखती है, एंड ओ पी पेयर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और ओ पी अपने राइट शोल्डर पे देखती है। ओके, समझ में आई ये बात? इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? Any doubts so far? Do you want to ask anything, something that didn't make sense to any one of you? Anyone talk about that? See, it's an important play. The questions have to be like considered well. You have to understand everything in detail. So you better pay attention to the things in a good manner. Is that making sense to everyone? Okay. Now let's get going, everybody, towards the next part of it. All right, omega. It appears to it appears to contain pictures of earthlings. All right. So इसने इस तरीके से बुक ली, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, ऐसा लगता है कि इसमें ना पिक्चर्स हैं। ऑल राइट, तो इसमें क्या दे रखा है? ऑलराइटी, तो इसमें उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि इसमें ना अर्दलिंग्स की पिक्चर्स हैं, यानी कि क्रीचर्स, ऑल राइट, फ्रॉम अर्थ, ठीक है, उनकी यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, आयोटा कह रहा है कि कुछ ना टाइप का कोड होगा। ऑल राइट, दैट इज व्हाट इट मेंशंस हियर। ओके, so what do we see that like it was basically talking about the picture, okay, wherein like it was totally a different kind of situation for him. And what do we see here? See, like there seems to be some sort of code. All right, so what is he saying कि यहाँ पे ना कोई एक तरीके का कोड है। थिंक टैंक शार्पली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, कोड बताओ। ओपी, इट्स लिटिल लाइंस, छोटी छोटी लाइंस हैं, एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स। स्क्विगल्स का क्या मतलब होता है कि बीच में गैप्स आ रहे हैं और डॉट्स आ रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंगसाइड द पिक्चर्स, और बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम हैं, और साथ में ना कुछ पिक्चर्स भी हैं, ठीक है। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्लिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, मतलब वो इतने भी ज्यादा मतलब होशियार नहीं है या फिर इतने भी ज्यादा बुद्धू नहीं है जितना हमने सोचा है। हमें ना ये कोड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। नूडल, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? ठीक है, सो अब क्या था कि वहां पे they used to eat certain medicines, okay, like in order to, sorry, vitamins, in order to increase their intelligence. तो थिंक टैंक, परहैप्स द अर्लिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव, मतलब वो इतने ज्यादा भी प्रिमिटिव नहीं है जैसे कि हमने सोचा था, हमें ना कोड ब्रेक करना पड़ेगा। नूडल कहता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, ठीक है, मतलब लेकिन हमारे इन लोगों को वाइटामिन दिए थे केमिकल डिपार्टमेंट ने, ठीक है। थिंक टैंक, स्टॉप, रुको, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज कम टू मी, मतलब एक बहुत ही अमेजिंग थॉट मेरे दिमाग में आई है। स्पेस पीपल, मतलब जो तुम लोग स्पेस में हो, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको वाइटामिन दिए थे, ऑल राइट, इंक्रीज करने के लिए आपकी इंटेलिजेंस, उनको इमीडिएटली लो और फिर सैंडविच को देखो, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, फिर धीरे धीरे जो मीनिंग है उस कोड का वो आपके आगे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज एक्सट्रीमली फनी,
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ है। वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप जल्दी से ये लो और फिर सैंडविच को देखो, जो कोड का मीनिंग है वो धीरे-धीरे अनफ़ोल्ड होने लग जाएगा। ओमेगा, इट शैल बी डन, हो जाएगा सर। रिमूव विटामिन्स, वो लोग विटामिन्स निकालते हैं, क्रू विटामिन्स निकालते हैं, उनके जो क्या कहते हैं बेल्ट में कुछ बॉक्स है, ठीक है, तो उससे वो विटामिन्स निकालते हैं, वो दिखाते हैं विटामिन्स। दे होल्ड द विटामिन्स इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफल, मतलब एक सीधी कंडीशन में खड़े होके, और वो फिर विटामिन्स को निगल जाते हैं, स्वेलो करते हैं। तो दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, वो रखते हैं मुंह में और फिर उसे गटक जाते हैं। गल्पिंग इज गटक जाना। दे ओपन देयर आईज वाइड, वो अपनी आंखों को और खोलते हैं। देयर हेड्स शेक, उनके हेड्स जो हैं वो शेक होते हैं। दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, वो अपने हाथों को अपने फोरहेड्स पे रखते हैं। थिंक टैंक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, नाउ डेसिफर दैट कोड। डेसिफर का क्या मतलब होता है कि अब इसको डिकोड करो, ठीक है, इसका मतलब निकालो। ऑल, इट शैल बी डन सर। दे फ्राउन ओवर द बुक, वो बुक को देखते हैं, पेजेस पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली, हाँ, आयोटा, ओ बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, ओ पी बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, हा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, क्या बोलती हैं ये बुक्स? टेल मी दिस इंस्टेंट, अभी क्या अभी बताओ। ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब मतलब कि ये क्या है बताओ। ओमेगा, ओमेगा, यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। अब ओमेगा जो है वो बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ रीड करती है। Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row? All right, so what do we see? Think tank, sorry, OP, ha ha ha. Imagine that. Pretty maids growing in a garden. ठीक है, think tank, alarmed. Stop. This is no time for levity. मजाक का टाइम नहीं चल रहा है यहाँ पे, खेल कूद का टाइम नहीं चल रहा है यहाँ पे. Don't you realize the seriousness of this discovery? ये जो हमें पता चला है, क्या तुम्हें इसकी seriousness समझ में नहीं आ रही है? The earthlings have discovered how to combine agriculture and mining. अब उन्होंने क्या किया? वो ये कह रहे हैं कि अर्थलिंग, जो अर्थ के क्रीचर्स हैं, उन्होंने ये चीज समझ ली है कि हमें कैसे कंबाइन करना है एग्रीकल्चर और माइनिंग को। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, मतलब कि ये लोग एक्चुअली क्रॉप्स क्या कहते हैं उगा सकते हैं रेयर मेटल्स से, यानी कि सिल्वर से और कॉकल शेल से। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स, वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सप्लोजिव्स भी क्या कहते हैं उगा सकते हैं। नूडल, कॉन्टैक्ट योर इन्वेजन फ्लीट, नूडल जल्दी से जल्दी जो वहाँ पे इन्वेट करने गए हैं उनको ऑल राइट कॉन्टैक्ट करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, सर वो लोग तो बिल्कुल रेडी हैं नीचे जाने के लिए और अर्थ का पे कंट्रोल लेने के लिए। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उनको बोलो रुकें। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस, ठीक है, हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन आई है अर्थ के बारे में, ट्रांसक्राइब करो। आयोटा, यस सर। ओके, वो बहुत ही ज्यादा ग्रेवली रीड करती है, बहुत ही अच्छे से रीड करती है। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाव्ड टू सी सच स्पॉट। ओके, ओपी हंसते हुए, द डिश रैन अवे विद द स्पून। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, रुक जाओ, सीजिंग इज लाइक स्टॉपिंग, हंसना बंद करो। डिसीस्ट, बिल्कुल रुक जाओ, चुप एकदम। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, हमें और भी ज्यादा उनके बारे में पता चल रहा है, डेंजरस हो रहा है हमारे लिए। द अर्लिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, वो मतलब बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल पे पहुंच गए हैं सिविलाइजेशन के। डिडंट यू हियर, आपको सुनाई नहीं दिया था? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक है, उन्होंने जो वहाँ पे उनके जो डोमेस्टिकेटेड जो पेट एनिमल्स हैं उनको उन्होंने म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है और स्पेस की टेक्निक्स दिखा दी हैं। उनके डॉग्स के पास भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्यों वो इस मोमेंट पे हो सकता है कि वो लॉन्च कर रहे हो एक इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस? समझ आ रही है कि बहुत सारी काउस का वो एक अटैक प्लान कर रहे हो। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, जो हमारा इन्वेजन फ्लीट है जो जाके कंट्रोल करना चाह रहा है, उनको बोलो आज इन्वेजन नहीं होगा, ठीक है। अब वो ओपी को बोलते हैं नेक्स्ट कोड बताओ क्या है। यस सर। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh, look, sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why, sir, he looks like. Turns the large picture of Humpty Dumpty towards Think Tank and the audience. The Humpty Dumpty ka shakal is almost like what he had, right? The very face, that oval thing. So Think Tank screaming and holding his head, चीख के और अपना सर पकड़ के एकदम से. All right. नाउ इट्स मी, ये तो मैं हूँ,
इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा बहुत बड़ा ब्रेन है। द अर्लिंग्स हैव सीन मी, उन्होंने मुझे देख लिया, एंड दे आर आफ्टर मी, अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, इसका मतलब होता है दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर, मतलब ये लोग प्लान कर रहे हैं कैप्चर करने का मार्स सेंट्रल कंट्रोल। ठीक है, और मुझे ये इन्वेजन है मार्स का। नूडल, एक स्पेस कैप्सूल बनाओ मेरे लिए, मैं अभी ही यहाँ से भागता हूँ बिना देर किए। स्पेस पीपल, आप लोग जो हो जल्दी से क्या कहते हैं अर्थ से वहां से निकलो, बी श्योर, जल्दी से श्योर हो कि आपके वहां पे जितने भी ट्रेसेस हैं विजिट के, आप उनको सब मिटा दो। अर्थलिंग्स को उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता है। तो ओमेगा आयोटा ओपी रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्स, वो चले जाते हैं कि बुक्स हमें वापस से शेल्स पे रखनी है। नूडल, हम कहाँ जाएं सर, थिंक टैंक, 100 million miles अगो फ्रॉम मार्स, मतलब कि इतनी दूर चले जाओ। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट, ऑर्डर करो इन्वेजन फ्लीट कि इवैक्यूएट करे पूरे प्लैनेट को मार्स का। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, प्लीज रिमेंबर दैट कि कहाँ जा रहे थे वो, हम लोग जा रहे हैं अल्फा सेंचुरी, 100 million miles अवे है ये। Omega iodine OP, run off right as Noodle helps think tank off left, and curtain closes, spotlight shines on historian down right. अब क्या है, हिस्टोरियन हंसते हुए, एंड दैट्स हाउ, इस तरीके से एक डस्टी ओल्ड बुक, एक मिट्टी चढ़ी हुई पुरानी किताब, नर्सरी राइम्स की, ठीक है, हमारा मार्शन इन्वेजन बचा लिया था। एज यू ऑल नो, जैसे आपको पता है 25th सेंचुरी में 500 years, मतलब जब ये सब हो गया था उसके बाद हम अर्थलिंग्स, हमने हमारा कांटेक्ट फिर से स्टार्ट कर दिया था मार्स के साथ, और हम और भी फ्रेंडली हो गए थे मार्शियंस के साथ। तब तक हमारा ग्रेट और माइटी थिंक टैंक जो थे वो रिप्लेस हो गए थे एक बहुत ही ज्यादा क्लेवर मार्शन से, हु इज वाइज एंड वंडरफुल। नूडल, ओ यस, वी टॉट द मार्शंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, हमने मार्शंस को एक डिफरेंस बताया, किसके बीच में, सैंडविचेस और बुक्स के बीच में, हमने उनको बताया कैसे पढ़ना है। हमने एस्टेब्लिश किया एक मॉडल लाइब्रेरी उनकी कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन आप जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, दे इज स्टिल वन बुक, अभी भी एक ऐसी किताब है जो मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, जो वो कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यू हैव गेस्ड इट राइट, दिस इज मदर गूस, she bows and exists right. Curtain. Okay, that's its closes. And Claire Boyko is the person, all right, who has written the given drama. So we are done with this. Divya, we are gonna deal with all the important questions later on. Any doubt in understanding? ऐसा कुछ जो किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ जो किसी को समझना है, anything like that you wanna ask me, you can go ahead with that quickly. Anything? They'll think and then they'll think a lot. Yeah, Ira. Yep. It is like really funny. Even I had found it like too funny. When I was reading it, I was just laughing and reading and I was sipping a cup of coffee when I had read it first time. Okay, so here we go. CBSE class 6 to 12. This is the special price offer. Get up to 45%. All right. We can get up to 45% on our CBSE class 6 to 12 subscriptions, unlimited access to live and recorded classes, structured batches and courses, in-class doubt solving by top educators, live tests and quizzes. Subscribe now. This is PSH 10. All right, so the offer is going on, everybody. You can make use of my code and you can go ahead with this for your own betterment. And then you see that we have plus and iconic, and plus we are offering, like for example, if you go for 12 months, the current price is 22,799. What you're gonna pay is 14,399. What you're gonna save is 8,400, which is like 37% of your savings. So use the code PSH10 and do wonders in your life. Similarly, you can go ahead with iconic as well. Just check it out, you'll get an idea of it. Okay, don't forget to attend the next class, which is right at 5 p.m. Okay, I'm gonna deal with the revision of determiners, so be there. Linguistic batch for grammar. This is for Hindi and English. CBSE class 10. The start date is November 17. Lakhan sir, Akash sir, Vandana ma'am and Bhavna ma'am are there teaching English, Hindi भी English and Hindi respectively. आप कोड यूज कीजिए PSH10 और अपनी जिंदगी में बाहर लाइए, right? Because you'll come under my guidance. Then one shot revision for math, social science and science. The batch start date is November 3. Mode of delivery is English. Vanessa, Rakshas, Himalsar and Hardik sir are there teaching you all maths, biology, physics and social science. Then answer writing batch and PYQs for math, science and social science. Class 9 it is. Start date is November 10. Mode of delivery is English. Vanessa, Hardik sir and Bhavna ma'am are there teaching you all math, social science and science respectively. Compete, everybody, battle and know where you stand. Play one-to-one live question battles and improve your rating. It's live on the Unacademy Android app. Thank you, everyone. I hope you love the class. Do not forget to share it with all your friends. Definitely like the session, share the bell button and do wonders in your life. Take care. Bye-bye and let's